Hello everyone. Welcome to Ask IITian's live session. Can you all hear me? Yeah, good evening everyone. Sorry to keep you all on waiting. There was some technical error. So I couldn't start the session. Meanwhile, can you hear me now? All of you, please respond if you can hear me. So who all are present here in the session? Tell me all. Tanmay is there. And then Ansh. Whoever is present, please respond in the session if you are there. Manya is there. Okay, great. Right. And so first of all, yeah, hi Vibhor. So before we start, please tell me how many of you are from the grade 11? How many students are here from the grade 11? Shubham is there. Amandeep is there. Sia is there from the grade 11. Great. Okay. And how many people are from grade 12? Vahaj is there from the grade 12. Tanmay is there from the grade 12. Great. Okay. So anyone who is there from the grade 9, 10, 8, or everyone is there from the grade 11, 12 only? I think everyone is there from the grade 11, 12 only, right? Exactly. Okay, anyways. So I hope you have heard about this book, S.C. Verma. You are not totally unaware of this book. Am I correct? And you all must be solving this as well. How many of you have solved this book, S.C. Verma? Either in grade 11 or in grade 12. How many of you have solved this book? Some chapters you have solved. Great. Okay. And you have solved each and every question. Objective 1, objective 2, questions for the short answer. Yes, Tanmay. Objectives mainly. Great. So, guys, what I will be discussing with you, I'll be discussing with you some good problems which are there in the objectives. One, objective two. Apart from this, some questions are there in the questions for short answer as well, which we usually totally ignore, right? So we should not ignore those questions, and I'll be mainly focusing on questions for short answer, objective 1 and objective 2, because see, numericals ke solutions you can easily get from Google. Am I correct? You all must be getting solutions from the Google. There are many links available for that, but the major problem is the questions for the short answer, objective 1 and objective 2. Those questions are so good and we do not even focus on them. Yes or no? So in this class, it's our first class mainly, and in this class I'll be taking few questions from objective 1, some of the questions from objective 2, and few questions from short answer, and some questions from exercise section as well. So let us start with our question number 1. So before I'll start, I would like to give you some revision as well, right? Let's start with some revision first of all, like what all we know from this chapter. So I think you all have studied about the motion in a straight line, right, from the beginning. So first thing which we do here is, just a second. Yeah, so the first thing which we discuss here is the average speed, average velocity concept. Average speed and average velocity concept, which is pretty easy. You all have done this in the grade 9 as well. Total distance upon total time. Am I correct? Then average velocity, total displacement upon total time. Those are very simple things, right? Everyone can solve it numerically. There is no issue about that. Then second part of this chapter is the equations of motion. Yeah, so there are three equations of motion for which we know that there is a condition. Let me first write down those equations and then you tell me in what condition these equations are very applicable. S is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square equals to u square plus 2as. Yeah, perfectly wonderful. We have to remember that these equations are always valid in the uniform acceleration case. Acceleration is supposed to be constant there. We should never forget this point. अब कई बार क्या होता है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है और हम लगाए जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. एक्चुअली ये इस चैप्टर में तो नहीं होता ये.
इस चैप्टर में तो हम याद रखते हैं, जब हम जाते हैं रोटेशन मोशन में तो वहां पे भी इसकी सिमिलर एनालॉजी ली जाती है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो वहां पे जैसे एक मान लीजिए एक मेटालिक बार है और वो ऐसे वर्टिकली गिर रहा है, किया ना आप लोगों ने क्वेश्चन ऐसे, देयर इज अ मेटालिक बार एंड इट इज फॉलिंग डाउन मोशन अंडर ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से इसे टॉर्क मिलेगा और वो ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अब उस केस में अल्फा जो होता है वो वेरिएबल होता है, यस और नो, मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूं, डोंट वरी। जो अल्फा होता है दैट इज बेसिकली वेरिएबल। अब अल्फा अगर वेरिएबल है तो हम उस केस में भी क्या करते रहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इन दीज इक्वेशंस द एक्सेलरेशन इज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दिस चैप्टर इज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। अब ये जो ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम होती है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, इनको एक अलग से सेपरेटली आई विल डिजाइन अ लेक्चर फॉर यू गाइस। एससी वर्मा में थोड़े से कम क्वेश्चंस है इसके, बट फिर भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां से हम ग्राफ कुछ उठा के बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना, या फिर मैं कुछ प्रीवियस ईयर से ले आऊंगा क्वेश्चंस, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो लेट अस बिगिन विद अवर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव 2, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो सब लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1? Yes, so everyone can see that? Yeah, perfect. So that is the question from the objective 2, all right? And there are 4 options and there can be more than one correct answer as well. So सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की। If the velocity and acceleration have opposite sign, साइन मतलब प्लस माइनस उस तरह से, ठीक है, then the object is slowing down। बताइए ट्रू और फॉल्स। If the velocity and एक्सिलरेशन, देखिए तुक्का नहीं मारना है आपको, है ना, थोड़ा टाइम लीजिए आप, इट्स ओके, आई हैव इनफ टाइम फॉर यू गाइस। तो आप भी थोड़ा टाइम लो और थोड़ा सोच के बताइए कि इफ द वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन हैव अपोजिट साइन देन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। क्या ये बात सही है? कुछ लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, बोला क्या मतलब हुआ अपोजिट साइन। एक काम करें आप, अच्छा मेंशन है कि स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है ना, एक बार बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर सर्कुलर मोशन हो तो अब क्या होगा, राइट, तो इन्होंने मेंशन किया इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑलराइट। चलो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओ सब लोग, ऐसे एवरीवन मेक अ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको बता दूं कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ये x इज इक्वल टू 0, ठीक। अब साइन की कुछ बात हो रही है, मतलब कि व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव एन अपोजिट साइन, चलो ले लेते हैं अपोजिट साइन। सपोज करो कि जैसे यहां पे है वेलोसिटी इस तरफ, सो वेलोसिटी का डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अपोजिट साइन जो हो गए, हुए क्या अपोजिट साइन? क्या ये अपोजिट साइंस हुए? वेलोसिटी राइट में, एक्सेलरेशन लेफ्ट में, यस दे आर अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव साइड में है ये पॉजिटिव साइड में है, वो पोजीशन के लिए होता है गाइस। अगर एक पार्टिकल राइट साइड में है तो दैट मीन्स इट्स पोजीशन इज +3 +4 +5 +2.5। अगर एक पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में है तो उसका पोजीशन नेगेटिव हो गया। बट यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साइंस अपोजिट हैं, तो क्या पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन? आंसर इज यस, द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज जैसे मैंने यहां पे लिया, नाउ दिस इज द साइन फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट, बिल्कुल इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। अच्छा यहां चलते हैं, यहां पे आ जाओ, एक्सेलरेशन ले लेते हैं हम राइट में और वेलोसिटी ले लेते हैं लेफ्ट में। क्या अगेन इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन? इज इट अगेन अ केस ऑफ रिटार्डेशन? यस। और क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अपोजिट हैं यहां पे? यस द साइंस आर अपोजिट हियर।
एग्जैक्टली exactly. ऐसा आप कभी भी देख लो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साइन जब जब अपोजिट होंगे तो पार्टिकल स्लो डाउन ही होगा. इट्स अ केस ऑफ रिटार्डेशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब ये चीज आपको अपने नोट्स में लिखनी चाहिए. अब आप जब नोट्स बनाते हो ना, जो 11th के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, स्पेशली आई वुड लाइक टू टेल देम कि दीज थिंग्स यू शुड राइट डाउन इन द नोट्स. एससी वर्मा ऐसे पढ़ी जाती है कि आप ऐसे उसको नोट्स बनाओ कि अच्छा ठीक है ये हमने इस क्वेश्चन से सीखा, बट कब? स्ट्रेट लाइन मोशन में. इफ इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन तो गलत हो जाएगा, तब ये कि नहीं कह सकते हैं. ठीक है, चलो भाई ये भी समझ में आ गया. अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, पोजीशन वाला. if the position and velocity have opposite sign, if the position and velocity have opposite sign, now क्या the particle is moving towards the origin? Is it true? अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं नहीं बताऊंगा, दिस यू शुड ट्राई योरसेल्फ. मेक अ स्ट्रेट लाइन, write down x is equal to 0, take some datas, write down the position of particle and take the velocity sign opposite to that. अब चेक करो क्या उसको ओरिजिन की तरफ जाना ही पड़ेगा. अब अगर क्लास में कोई धुरंधर बैठा है तो वो कह देगा, कोई एग्जाम्पल बता देगा इसका. आपने कोई एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है इस चीज का? एनी एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड ऑफ दिस? कोई बता सकता है? स्पेशली 12th वाले बच्चे बता देंगे. बिल्कुल सही बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन. वेरी गुड. और कोई एग्जाम्पल तन में? एनी अदर एग्जाम्पल? आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं. बिल्कुल सही बात है, थ्रोइंग अप अ बॉल, इसका एग्जाम्पल आप बोल रहे हो. क्या ये सही बात है? अच्छा एग्जाम्पल दिया है वहाज ने. इज इट ट्रू कि सपोज यू थ्रो ए पार्टिकल इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. अब इज इट नेसेसरी कि पोजीशन एंड वेलोसिटी शुड हैव द अपोजिट साइन? नहीं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलो इसको पहले डिस्कस करते हैं. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. जैसे मान लीजिए कि सपोज, जस्ट अ सेकंड, सपोज इट इज x इज इक्वल टू 0, ठीक. एंड नाउ यू थ्रो ए पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक. अब ये पॉजिटिव साइड हो गया और ये नेगेटिव साइड हो गया. टेल मी व्हाट इज द साइन ऑफ पोजीशन? इफ पार्टिकल इज गोइंग अप, व्हाट इज द साइन ऑफ पोजीशन? पॉजिटिव. व्हाट इज द साइन ऑफ वेलोसिटी? पॉजिटिव. तो क्या अपोजिट साइन हुए? अरे नहीं हुए ना. तो इसलिए वो वाला एग्जांपल वहाज इट विल नॉट बी ट्रू. समझ में आया? सो यू कैन नॉट से लाइक दैट. व्हेन इट कम्स डाउन इज व्हाट आई मेंट. ओके, बट ऐसा हमेशा ट्रू होना चाहिए ना वहाज. फिर ऐसा हमेशा ट्रू होना चाहिए, मतलब इफ अ स्टेटमेंट इज गिवन इट शुड बी ऑलवेज ट्रू इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन. ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर केस आपने ले दिया और बोला कि सर यहां पे तो लग रहा है, ठीक है. हाँ, तो इट शुड बी ऑलवेज ट्रू, ध्यान रखें आप. इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर एक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी के अपोजिट साइन है देन इट मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. देखिए अब देखते हैं इस चीज को प्रूव करते हैं. अब जैसे मान लो सपोज कि दिस इज सिंपल सा एक ग्राफ बनाया हमने, x इज इक्वल टू 0, ठीक. अब पार्टिकल का पोजीशन एंड पार्टिकल का वेलोसिटी, दे बोथ आर हैविंग अपोजिट साइन. सो लेट्स से सपोज आई पिक द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल हियर +2 पे, ठीक है. एंड नाउ सपोज आई टेक द वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव साइन. देख लो पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा है. भाई जब पोजीशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो पार्टिकल कहां जा रहा है? ओरिजिन की तरफ. अब अगर मान लो ऐसा केस ले ले तो पोजीशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, तो क्या फिर से पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा है? यस और नो? एग्जैक्टली. तो यही केस होता है, इसलिए स्टेटमेंट जो बिल्कुल
करेक्ट है। तो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो ट्रू। अब चलते हैं स्टेटमेंट सी की तरफ। इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड बी ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ अंश, नॉट नेसेसरी एज अ बॉल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी जीरो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है कि जब आप एक पार्टिकल की बात करते हैं व्हेन द पार्टिकल इज एट अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जैसे हाईएस्ट पॉइंट की बात कर लो आप, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं रुकेगा वो, बट वहां पे क्या ग्रेविटी जीरो हो जाती है? नहीं, ग्रेविटी की वजह से ही तो वो नीचे आता है वापस। ऑलराइट, सो व्हेन अ पार्टिकल इज गोइंग अप फ्रॉम द ग्राउंड इट विल स्टॉप एट अ सर्टेन लोकेशन एंड एट दैट लोकेशन द वेलोसिटी वुड बी जीरो, बट क्या एक्सेलरेशन वुड बी जीरो? नहीं, इट विल बी डाउनवर्ड्स। तो इफ अ वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट देन acceleration should also be zero at that instant. It is not necessary. तो इक्वेशन जो ऑप्शन सी है दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है देखो, इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कितने क्लेवरली बनाए गए हैं, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी में आपने ये सीखा कि इफ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो तो क्या इसका एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो? नहीं, बट ऑप्शन डी कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल, जैसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, तो क्या एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल? इज इट ट्रू? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू शुड कंपेयर द ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इज इट ट्रू? शिवेन कह रहा है नो, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अंश कह रहे हैं यस, शुभम कह रहे हैं यस, वहाज इज सेइंग ट्रू, अमनदीप इज सेइंग इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, दीपा इज सेइंग इट्स ट्रू। ठीक है भाई, राज पटेल ने भी यही कहा है, शाहद ने भी यही कहा है, बिल्कुल सही बात है। तो मेजोरिटी सेइंग इट इज ट्रू, तो मेजोरिटी की मान लेते हैं, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पार्टिकल कैन स्टॉप, ठीक, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन अपोजिट था, इट वाज अ रिटार्डेशन केस। बट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, व्हाट डू आई मीन बाय लॉन्ग ड्यूरेशन? 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लॉन्ग ड्यूरेशन में जब आप बात करोगे, इफ द वेलोसिटी इज जीरो तो एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। भाई अगर एक्सेलरेशन होता तो क्या पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाती? आप खुद सोचिए, इफ अगर एक्सेलरेशन इज देयर द पार्टिकल वेलोसिटी वुड हैव चेंज्ड। हाँ, व्हेन यू टेक फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर अ मोमेंट इफ यू टॉक, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई उस टाइम पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, है ना, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम जो ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एस सी वर्मा। तो आप लोग इसको जरूर अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, ऑल द पॉइंट्स, whatever points are there you should mention those points in your module। ठीक है ना, सॉरी, ये जो आपकी जो भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें आप मेंशन कर लीजिए इसको, या फिर आप बुक में ही कहीं ना कहीं उसको स्टार मार्क लगा लो। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने ऑब्जेक्टिव 2 से ही लिया है, वो भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव 2 एस सी वर्मा। सबसे पहले ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल in a given time is never less than the magnitude of average velocity. True or false? True, बिल्कुल सही बात है भाई। ये वहां से निकल के आता है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम देयर कि डिस्टेंस इज नेवर लेस देन डिस्प्लेस, डिस्टेंस इज नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, वहीं से निकल के आ रहा है स्टेटमेंट ये। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो अगर डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। सिमिलर वे, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी लेस देन एवरेज वेलोसिटी। अब ये समझाने की जरूरत है क्या आप लोगों को? 11 12 में हो भाई आप लोग, ये तो 8 9 वाले बच्चों को पता होता है। आ गया ना, इजी। चलो इसको नहीं समझाते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट से बात करेंगे। आपको लग रहा होगा नीचे मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, डी ऑप्शन, उसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, ऑप्शन डी।
अब हम बी ऑप्शन पे चलते हैं. इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन, पोज देके सोचेंगे इस पे. इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच मोड ऑफ dv by dt, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ dv by dt इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये कंडीशन है. बट डेरिवेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज जीरो. कुछ लोगों के तो प्राण निकल गए इसी में. कहना क्या चाहते हो? नहीं. 1 मिनट, चलो ठीक है, टाइम दिया आपको. थिंक अबाउट इट और बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. इज इट ट्रू और फॉल्स? अच्छा, काफी नए बच्चे भी आ चुके हैं. सो द न्यू स्टूडेंट्स, ट्रू सर फॉर सर्कुलर मोशन. 1 मिनट और दो, ले लो. किसी को गाना वगैरह गाना है? कोई गा दो बीच में, क्लास के बीच में, मतलब बाकी लोग सोल्व कर रहे हैं इतने. नहीं. आस्क शिवेन. उसने 1 मिनट मांगा है, फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं. रुक जाओ एक बार. ठीक है, so तन्मय का आंसर चेक करते हैं, सही है गलत है. तन्मय डी फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा. शिवेन इज सेइंग इट्स फॉल्स. लेट मी डिस्कस नाउ. है ना, जरा थोड़ा सा डिस्कशन पे जरा टाइम लगाते हैं हम, है ना. इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल. ठीक है ना, डिस्कशन करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी बेनिफिट फॉर यू ऑल. चलिए, इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच. मैं तो इसको पता है कैसे पढ़ता हूं इस स्टेटमेंट को. मुझे जब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो मैं इसको डीवी बाई डी को पहले ए लिख देता हूं. मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो. अब क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज जीरो. अरे सही बात तो है. जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो स्पीड कहां से चेंज होगी मेरे भाई? समझ में आया? जब बिल्कुल से ऐसे सिंपल बना लो आप उसको. देखो, डीवी बाई डी टी क्या होता है? डीवी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज मोड ऑफ एक्सेलरेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये डी बाई डी टी जो टर्म है, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? ऑफ स्पीड. जीरो. हाँ सही बात है. जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड कहां से चेंज होगी? अब इसी पे ऑप्शन पे बेस्ड एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 9 या 10 है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नंबर, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है. सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन है वो. ठीक है, उसका भी आपको अभी डिस्कस करेंगे हम. इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सब. ऑप्शन बी को. ऑप्शन सी पे चलते हैं. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल. इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल. ब्रेक करके पढ़ो. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल. It is possible that the instantaneous velocity is never zero in the interval. True or false? True. Example दो. अब देखो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इट्स अ स्ट्रेट लाइन. यहां नहीं लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन. If I write down straight line, then it may be you will be getting a different answer. It is not mentioned here कि it is a straight line. कोई example इसका? Can you tell me the situation in which the average velocity of a particle is zero in a time interval, but instantaneous velocity is never zero in the interval? सबने ट्रू फॉल्स बोल दिया. पार्टिकल इन अ सर्कल.
बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूसीएम, राइट। या फिर यूसीएम का जरूरत भी नहीं है, इट इज पॉसिबल दैट, हाँ ठीक है, यूसीएम की जरूरत नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म भी चलेगा। कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो, सही बात है, बट एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगा इन अ वन टाइम पीरियड। अब चलते हैं द बेस्ट ऑप्शन डी पे, सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। अब स्ट्रेट लाइन मेंशन है, सब लोग ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। पिक्चर बन गई होगी दिमाग में, एक पार्टिकल गया वापस आया, है ना। अब आगे चलते हैं। इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल, और ब्रैकेट में लिख के छोड़ दिया, इनफाइनाइट एक्सेलरेशंस आर नॉट अलाउड, इनफाइनाइट एक्सेलरेशंस आर नॉट अलाउड। ये क्या बात हुई सर? अब ये तो एस सी वर्मा सर से पूछो, उन्होंने बनाया क्वेश्चन ये। फॉल्स फॉर एग्जाम्पल द एवरेज ऑफ, एक मिनट मैं देखता हूँ कुछ बच्चों के क्वेश्चंस, एक सेकंड देखो, मस्त क्वेश्चन है ना, हाँ। बेहतरीन होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा टैग ही वही है, बेहतरीन। फॉल्स फॉर एग्जाम्पल द एवरेज ऑफ 4 एंड प्लस 5 इज 4.5, ओके, विच विल लाई इन बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर, इफ द एवरेज हैज टू बी जीरो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी should be zero at some point. हम्म, ठीक है, आपने थोड़ा मैथमेटिकली समझाया। सिचुएशन ले लो ना एक आप, कि पार्टिकल वापस जा रहा है, आप आ रहा है, ठीक। हाँ, इट हैज टू बी जीरो एट दैट पॉइंट, इट टर्न्स बैक, हाँ ये देखो लिख दिया, ये बिल्कुल सही बात है। मीनिंग इट कांट इंस्टेंटेनियसली स्विच डायरेक्शन। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफिकली समझाता हूं। अगर स्ट्रेट लाइन वो वापस आ जाता है इनिशियल पॉइंट पे, हाँ, तो तभी तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसका, ठीक है। मतलब उसको वापस आना पड़ेगा ना, मतलब इट हैज टू कम बैक, इट हैज टू कम बैक, मतलब ये तो पता चल गया कि स्टेटमेंट फॉल्स है, यस और नो। अब कुछ लोगों को ये चमका कि वाई एम सेइंग स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कैसे पता चला मुझे? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, इट्स अ सोर्स पॉइंट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट गोज टू दिस पोजीशन, डेस्टिनेशन, ऐसे, एंड नाउ पार्टिकल कम बैक अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उसमें लिखा था स्ट्रेट लाइन, ठीक, वापिस आ गया। लेट्स से ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो? बिल्कुल यस जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो? यस इट इज जीरो। तो क्या पार्टिकल ने कहीं पे डायरेक्शन चेंज किया? यहां पे किया, तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी वहां पे, एक एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट? क्या एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी वुड बी जीरो और नॉट? ये बताओ आप लोग। इट विल बी जीरो एट दैट इंस्टेंट, अदरवाइज डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा? इट हैज टू बी जीरो, यस और नो। अब इसका क्या मतलब हुआ फिर? इनफाइनाइट एक्सेलरेशंस आर नॉट अलाउड। Who will explain this line? कि what is the meaning of this? Infinite accelerations are not allowed. ये समझना है मुझे तो, कि why it is mentioned over here. Retardation भी होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं. It means you can't add an acceleration that changes velocity from positive to negative instantly without it being zero. Very good, nice. बिल्कुल सही बात है, देखो। मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली अगर आपको शो करूंगा तो यू विल गेट इट इजियर। सपोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे है, ठीक। अब ये ग्राफ मान लो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, क्या पार्टिकल का वेलोसिटी इज चेंजिंग? बिल्कुल। पहले क्या था? पॉजिटिव,
और इस रीजन में नेगेटिव, तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट क्या यहां पे एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हुआ? नहीं, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं है। ये देखो ना, स्लोप बना सकते हैं यहाँ पे। आप इसका स्लोप कैलकुलेट कर लोगे? नहीं कर पाओगे क्या? थीटा, tan थीटा वुड बी द आंसर। अरे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सेलरेशन देता है, तो ये तो हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए, सपोज इफ आई गिव यू द ग्राफ लाइक दिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से, और एब्रप्टली यहां पे, अब बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई? हुई कि नहीं हुई? यस। बट यहां पे क्या हुआ? एट दिस इंस्टेंट एक्सेलरेशन नॉट डिफाइन। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे एक्सेलरेशन नॉट डिफाइन। देखो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन नॉट डिफाइन, बिकॉज एब्रप्ट चेंज हो गया है। तो अगर पार्टिकल को वेलोसिटी का साइन अपोजिट करना है, इफ पार्टिकल वांट्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, what it has to do, it has to change the direction of velocity. If it wants to change the direction of velocity, तो वेलोसिटी का साइन अपोजिट होगा। अब अपोजिट करने के दो तरीके, फर्स्ट मेथड वो रहा पहले वाला। तो इस मेथड में वेलोसिटी कभी भी जीरो हो रही है क्या? यस, एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी इज बिकमिंग जीरो। और इस मेथड में वेलोसिटी नेवर बिकमिंग जीरो। सर, स्टार्टिंग पॉइंट आप छोड़ दो, लाइक अगर आप यहां से ग्राफ स्टार्ट कर दो, तो वेलोसिटी इज नेवर बिकमिंग जीरो इन बिटवीन द मोशन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन नॉट डिफाइन आ गया। कैच कर पाया आप इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज बिकमिंग जीरो, बिल्कुल सही बात है, राइट। बट सेकंड केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, बट यहां पे एक्सेलरेशन नॉट डिफाइन हो गया। तो इस बात को आप थोड़ा चिंतन मनन करें घर पे, और ये थोड़ा सा जो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन नॉट अलाउड जो बोला गया है, इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करें कि क्या लिखा गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन है उसके पीछे, अगर हम इसको ग्राफ के वे से देखें तो। ठीक, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो मैंने आपको कहा था कि जो ऑप्शन बी था पिछले क्वेश्चन में उसी पे बेस्ड है। सो नाउ यू सी दिस क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ कार, इट्स अ क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर बेसिकली, जो एससी वर्मा में आप लोग कभी सोल्व नहीं करते हो, है ना, is proportional to the additional petrol put into the engine। क्योंकि कार की स्पीड कैसे बढ़ेगी? जितना इसमें पेट्रोल डालेंगे। Is it possible to accelerate a car without putting more petrol or less petrol into the engine? सोचो, बताओ। Is it possible to accelerate the car without putting more petrol or less petrol into the engine? जबकि अगर आपको कार को एक्सेलरेट करवाना है तो आपको उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, मतलब सॉरी, स्पीड अगर इंक्रीज करनी है तो आपको उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। वो आपका मर्जी है, आपको आपको एग्जांपल बताना है कि कैसे सिचुएशन में ये हो जाएगा। When the petrol runs out by itself, it will slow down। अच्छा, then the sir car is moving in a slope, will be possible to accelerate। स्लोप मतलब क्या हुआ आपका? यस अर्पन, वेरी गुड। डाउन हिल, वेरी गुड। आप सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे स्लांटेड रोड, हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल। इसे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सर्कुलर मोशन का, ठीक है। अब
द कार इज गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन. क्या यूनिफॉर्म स्पीड से जा सकती है? हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो when a car is in a uniform circular motion, when the car is in a uniform circular motion, its speed does not increase. Its speed remains constant. But क्या car is accelerating? शिवम कह रहा है नो. पार्ट एक, हाँ, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी का डायरेक्शन इज चेंजिंग. अरे कौन सा एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे? इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? द एक्सेलरेशन विच इज देयर टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल. तो पार्टिकल के पास ऑलवेज देयर इज वन एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो कार तो यहाँ पे एक्सेलरेट हो ही रही है, इस बात को आप ध्यान रखें. ठीक है ना? हाँ सर, अगर वो फ्रॉम एग्जाम्पल रोकी टेरेन पर चल रही है और फिर एक स्मूथ टेरेन पर जाता है, उसमें इंक्रीज हो जाती है. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सपोज राइट नाउ इट इज गोइंग इन अ कर्व्ड ट्रैक एंड सडनली इट स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ स्मूथ ट्रैक. हाँ, उस टाइम अगर आपको उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो आपको उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा. ठीक, बट उस टाइम फिर वो एक्सीलरेट भी तो नहीं हो रही. जब स्ट्रेट रोड पे है तो एक्सीलरेट थोड़ी हो रही है वो. अगर आपको एक्सीलरेट करना तो आपको इसको पेट्रोल डालना पड़ेगा उसमें, या फिर डेसिलरेट करना है तो फ्रिक्शन मत मानो आप इसमें अभी. राइट. अगर आप फ्रिक्शन मान लेंगे फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में. वैसे यहाँ चलो मेंशन कर देते हैं, एज्यूम स्मूथ सरफेसेस. ठीक है, फ्रिक्शन मत मानो. ठीक. अच्छा, मतलब उन्होंने लिखा है ना, देखो थोड़ा सा आपको कैच करना पड़ेगा. उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है कि द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ कार is proportional to the additional petrol put into the engine. मतलब by any other methods you cannot do this. The only method to do this is the by putting the petrol. You cannot do this by friction or something else. ठीक है, नहीं अच्छा पॉइंट बोला है वैसे आपने, थोड़ा सा इसको वैसे भी समझ लें. चलिए अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं इसके. ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 एस सी वर्मा का. अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन आंसर है इसका. ट्राई करो सब लोग, 2 मिनट में हो जाएगा, जल्दी से कर दो. देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं ये क्वेश्चन. मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना वो देख के. मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ पहले आपको? चलो पहले एक काम करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट. सो भाई कहानी कुछ ऐसी है कि एक गाड़ी किसकी है? एक गाड़ी है अपने चोर की, राइट, और एक गाड़ी है अपने पुलिस की. ठीक है, तो चोर वाली गाड़ी जो है वो यहां से, ये टर्निंग है मान लो, यहां से चोर वाली गाड़ी निकलती है और यूनिफॉर्म स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर. तो मान लेते हैं, हाँ ठीक है, यहां से मान लेते हैं चोर वाली गाड़ी निकलती है 72 किलोमीटर पर आवर से. उसके 10 सेकंड के बाद में इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट, पुलिस वाली गाड़ी भी निकल जाती है. और कहीं ना कहीं जाके पुलिस वाली गाड़ी जो है वो चोर वाली गाड़ी को पकड़ लेती है. मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, कुछ लोगों को लग रहा है कि कोई कहानी सुना रहे हैं. ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपने पढ़ा हो तो. एक पुलिस की गाड़ी है, एक चोर की गाड़ी है. चोर की गाड़ी इस पॉइंट से निकलती है और उसके 10 सेकंड बाद इसी पॉइंट से पुलिस की गाड़ी भी निकलती है.
और कहीं ना कहीं जाके पुलिस की गाड़ी चोर की गाड़ी को पकड़ लेती है। तो मान लेते हैं यहां पे आके पकड़ लिया, तो यहां पे ये चोर की गाड़ी, हिंदी समझ में आती है ना आपको, और ये पुलिस की गाड़ी। हम्म, चोर प्लस पुलिस दोनों का मिलन हो गया यहां पे। ठीक, अब जरा देखो यहां से जब चोर की गाड़ी निकली तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, कुछ एक्स बोल देते हैं। 1000 मीटर इज द राइट आंसर, सारा एंड आदित्य वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अब मान लेते हैं द जो चोर की गाड़ी है दैट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। ठीक, अब इतना ही डिस्टेंस कितने किया, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है वो किसने किया होगा, पुलिस वाली गाड़ी ने किया होगा, है ना। तो उसका डिस्टेंस भी एक्स हो गया। एक तो बात होगी ये। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जाने में टोटल डिस्टेंस वाज एक्स, ऑल राइट, एंड द टोटल टाइम टेकन वाज लेट्स से टी। ये हम कुछ वैल्यूज मान लेते हैं, ये बाद में हमें सब वैल्यूज मिल जाएंगी, बट एक बार के लिए हम लोग इनको मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज एक्स एंड टोटल टाइम इज टी। तो एक्स डिस्टेंस एंड टाइम टेकन इज टी, ये हमने मान लिया, ऑल राइट। तो अब अगर हम सबसे पहले चोर वाली गाड़ी के लिए देखें, तो एक्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और आई गेस स्पीड इज गिवन कितना 72 ना। हम्म, तो 72 किलोमीटर पर आवर, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स पर सेकेंड, तो 5/18 20 हो जाएगा क्या वो, बिल्कुल सही बात है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इतना ही डिस्टेंस किसने किया, जो पुलिस वाली गाड़ी है उसने किया, राइट। अच्छा, पुलिस वाली गाड़ी को देख लेते हैं, सेम डिस्टेंस, स्पीड कितना था 90, तो 90 इंटू 5/18। तुम लोग सन्नाटे में तो नहीं चले गए, ये 5/18 क्या लिखा है मैंने इसमें, किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, ऑल राइट। सो टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, 1000/3600, दैट यू कैन रिमेंबर डायरेक्टली एज 5/18, ऑल राइट। अब बताओ जरा टाइम कितना लगेगा, क्या टी ही टाइम लगेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा, T+10 लगेगा, या फिर कुछ और लगेगा, T+10, थोड़ा सोच लो मतलब आराम से। अच्छा, कुछ डेटा लेके काम करें, मान ले देते हैं कि जैसे एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं, चलो ठीक है, ये लो। कुछ कुछ नंबर ले लो आप, अब T-10 दिख रहा है आपको। ऐसे मान लो 3:20 पर 3:20 पे चोर वाली जो गाड़ी है वो यहां से निकली, लेट्स सपोज एट 3:20, जो चोर वाली गाड़ी है वो यहां से निकली, और मान लेते हैं 3:50 पे जो पुलिस और चोर का मिलन हो चुका है, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। शुभम गलत है, वो T-10 होगा, अब समझो उसको कैसे। 3:20 पे चोर वाली गाड़ी वहां से निकली, और लेट्स से एट 3:50 पुलिस वाली गाड़ी ने उसको पकड़ लिया। ठीक, ये सेकंड्स लिखे हुए मान लेना, ये 3 मिनट्स 20 सेकंड्स इस तरह से, और ये 3 मिनट्स 50 सेकंड्स पे उसने पकड़ लिया। ठीक, अब पुलिस वाली गाड़ी कितने सेकंड्स बाद आती है, आफ्टर 10 सेकंड्स। तो मतलब पुलिस वाली जो गाड़ी है वो तो 3:30 पे आएगी ना यहाँ पे, जो पुलिस वाली गाड़ी है वो तो 3:30 पे आएगी। तो पुलिस वाली गाड़ी को यहां से आ जाने में कितना टाइम लगा, क्या उसने टी लिया तो उसने T-10 लिया, अब पकड़ पा रहे हो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि यहां पे आपको T-10 लिखना होगा। एंड नाउ यू इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। उसको सोल्व करने के बाद आपका एक्स का आंसर आ जाएगा 1000 मीटर्स। बस, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा बस यहीं पे गड़बड़ होती है फर्स्ट टाइम पे, और वो ऑप्शन आपको दिखेगा वहां पे एग्जाम में।
t+10 लेके जब आप सोल्व करोगे ना, आई गेस यू गेट द नेगेटिव आंसर फ्रॉम देयर, जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने किया था एक बार ऐसे करके जानबूझ के, बट यू विल गेट वन दैट सेम ऑप्शन देयर इन दी ऑप्शंस आल्सो। तो आपको लगा कि हाँ नहीं नहीं ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर दो, मैग्नीट्यूड लेते हैं टाइम का, ऐसे करके चिपका देते हो वहां पे आंसर। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा समझ के करें क्वेश्चन को, कि चोर वाली गाड़ी जो है इट इज टेकिंग लेट्स से t सेकंड्स, तो जो पुलिस वाली गाड़ी है इट विल टेक t-10 सेकंड्स, दैट्स इट। ठीक, हाँ, अब इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन ठीक था। एन एनसीसी परेड इज गोइंग ऑन, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप इसको जल्दी से कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट। द क्वेश्चन इज अबाउट कि यहां पे एक एनसीसी की परेड देखी है ना आप लोगों ने, स्टार्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल, कितने लोग हैं एनसीसी में यहां से, नहीं देखी आप लोगों ने, चलो कोई बात। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से एक परेड ने स्टार्ट किया, और ये है, मान लो यहां पे क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एन एनसीसी परेड इज गोइंग ऑन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड देर इज अ बर्ड सिटिंग ऑन अ बेरी ट्री। तो यहां पे लेट्स से ए बर्ड इज सिटिंग एट दिस प्लेस। ठीक, height at which this bird is sitting is how much? 12.1 meters. At a particular instant the bird drops a berry, मतलब उसने कुछ गिरा दिया ऊपर से। ठीक है, अच्छा, which cadet will receive the berry on his uniform, मतलब कि जैसे यहां से मान लो स्टार्ट होगा, तो एक एनसीसी कैडेट यहां पे खड़ा होगा, कोई यहां पे होगा, कोई यहां पे होगा, तो कौन सा वाले को वो, जो उसने जो भी ऑब्जेक्ट गिराया है वो मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगा आपको, इसमें एक तरीका और होता है एक फ्रेम करने का क्वेश्चन, कि सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ए मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, राइट, द अनदर पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द 10th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। अब 10th फ्लोर पे जो खड़ा है उसने कुछ गिराया, and now the person who is sitting on the who is standing on the ground, he will start running. So with what speed he should run so that he is able to catch the thing which he has dropped? तो क्या वो दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गए? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? दोनों क्वेश्चन सेम ही है बिल्कुल, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये सेम क्वेश्चन है, इनको करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, मैं आपको बता देता हूं। जितना टाइम इसने यहां से यहां आने में लिया, उतना ही टाइम इसको यहां से यहां आने में लगना चाहिए, खत्म। The time taken by the object to fall down through a height of 12.1 meter is equal to the time taken by the cadet to go from the initial location to final location। खत्म, यहां से आंसर आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x थी, तो x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 6 इंटू 5/80 इंटू टाइम, इक्वेशन 1। एग्जैक्टली इन द सेम टाइम दिस ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन, तो डिस्प्लेसमेंट 12.1 ut plus half at square, initial velocity 0, half multiplied g multiplied t square। अब यहां से t की वैल्यू उठा के यहां रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। जितना टाइम बैरी ने ऑब्जेक्ट ने नीचे गिरने में लिया, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दिस पर्सन मस्ट हैव टेकन टू गो फ्रॉम इनिशियल लोकेशन टू फाइनल लोकेशन। क्या टफ लग रहा है सवाल? सिंपल है। चलो अब बताइए, नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स करें इसी टाइप के, या फिर कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए जाएं? हाँ जी सर, हाउ डू वी बैलेंस बिटवीन मॉड्यूल एचसीवी एंड एनसीईआरटी? देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आप अपने क्लास नोट्स को अच्छे से फॉलो करो, राइट, वो आपके परफेक्ट होने चाहिए। उसके बाद में एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए बिल्कुल, और अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना है तो इजीली यू वुड बी एबल टू ग्रेस्प द एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी में इतना टफ होता नहीं है ना, कुछ चैप्टर्स की लैंग्वेज टफ है, अदरवाइज एनसीईआरटी का लैंग्वेज इतना टफ है नहीं।
उसके बाद आपको, जब आपका क्लासेस चल रही हैं, उसी टाइम पे आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करते जाएं साथ साथ में। ठीक है, जैसे जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, जैसे टुडे लेट्स से वी हैव कवर्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, तो अब मॉड्यूल में कुछ उसके अराउंड 40-50 प्रॉब्लम्स होंगे, तो आज ही जाके आप 40-50 प्रॉब्लम्स लगा दो सेम डे। ठीक, तो जैसे ही क्लास में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बायो की, सेम डे आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाएं। ठीक, अब जैसे ही चैप्टर ओवर होगा, आपका मॉड्यूल तो कंप्लीट हो गया, है ना। ऐसे ही होता है, हमने भी ऐसी पढ़ाई की थी, मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपके पास में अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और ये पुराना चैप्टर खत्म हुआ, बीच में 2 दिन का गैप तो मिलता होगा, उसमें आप एससीवी लगाओ। और एससीवी में ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, कितने क्वेश्चंस है एससीवी में ऑन एन एवरेज? 70-80, इतने ही तो है। और उनमें से 80 में से 40 तो आपसे यूं हो जाएंगे 1 सेकंड में। मेजर टाइम जो लगता है दैट इज अबाउट द लास्ट 40 क्वेश्चंस। ऑलराइट, जेई वाले क्वेश्चंस बच जाते हैं। देखो, मॉड्यूल, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मॉड्यूल कभी 100% करने के लिए बना ही नहीं है ना, होता भी नहीं है। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो कुछ क्वेश्चंस कर लो उसमें से, हाँ, बट मेक श्योर कि आप कभी प्रीवियस ईयर ना छोड़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आप 100% मॉड्यूल नहीं कर पाएंगे, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है वो। मतलब अगर आप टॉपर से भी पूछेंगे ना, जो ईयर 1 ईयर 2 होते हैं, वो भी नहीं कर पाते 100%। जैसे एससीबी फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 80th क्वेश्चन सब कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ये दुकान थोड़े ना है जो मतलब 100 किलो चीनी ले आए, 50 किलो आलू ले आए, ऐसे थोड़ी चलता है। यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा बैठना पड़ता है। इसलिए आप जो 10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा तमीज से करें, आप उसके नोट्स बनाए। जैसे आपने जो क्वेश्चन किया ये वाला, ये जो क्वेश्चंस आपने किए, इनके नोट्स बनाइए आप। यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, कि हाँ अच्छा ये वाला पॉइंट अच्छा था यार, अब ये ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन करो बट अच्छे से करो। ठीक है, और मॉड्यूल अगर आपसे 70-80% अगर आप कर लेते हो, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। जेई एक्सरसाइज ओनली फ्रॉम मॉड्यूल, अच्छी बात है, वेरी गुड। मॉड्यूल को रिवाइज कैसे करें? जब आप मॉड्यूल कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे मॉड्यूल में एक हाईलाइट करके रखें कि मॉड्यूल में ये वाला पॉइंट अच्छा था, राइट, इस क्वेश्चन को करने में मुझे ये प्रॉब्लम आई। उसको फिर जब रिवीजन करेंगे आप जनवरी में, फैब में, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको पता होगा कि आपको क्या रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, शुरू से चालू कर दिया, t=0 पे ये था, t=10 पे ये था, ये सब नहीं करना होता। हाईलाइट करके रखो कि अच्छा हाँ, ये 10 पॉइंट्स है जो मेरे पे कमजोरी है, मुझे पता है कि जनवरी के अंदर मैं ये चीजें भूल जाऊंगा, या फिर मार्च में ये चीजें मैं भूल जाऊंगा, बस उन्हीं को पढ़ लो फटाफट, खत्म। और कुछ बच्चे इनके पीछे भागते हैं, सर कोई रिवीजन नोट्स भेज दो। अरे खुद के बनाओ रिवीजन नोट्स, ठीक है ना, खुद के रिवीजन नोट्स बनाने चाहिए। आप बताइए, डू यू वांट मोर क्लासेस लाइक दिस, और यू वांट टू स्टॉप हियर? यू वांट मोर क्लासेस लाइक दिस? चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, लेट्स हैव मोर क्लासेस इन द फ्यूचर। आपको चाहिए प्रीवियस ईयर की भी कुछ सीरीज चालू की जाए? डू यू वांट द सीरीज टू बी स्टार्टेड ऑन द प्रीवियस ईयर एज वेल, पैरेलली? रिवीजन जैसा हो जाएगा हमारे लिए। चलिए काम करते हैं फिर, फॉर मोर चैप्टर्स एज वेल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, एक काम करते हैं कि 12th से रिवीजन चालू करवा देते हैं आपका, और 11th एससी वर्मा और 12th के प्रीवियस ईयर ऐसे पैरेलली चलाते हैं। वुड इट बी ओके फॉर यू कि 12th के प्रीवियस ईयर और 11th के एससी वर्मा? आई थिंक दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप 11th का भी टच में रहोगे और 12th भी टच में रहोगे। तो ऐसा करते हैं, लेट्स हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 11th एंड 12th। इट्स क्वाइट गुड। चलो ठीक है, फिर आज आपकी रिक्वेस्ट मैं मैनेजमेंट टीम को जरूर दूंगा, एंड दे विल लुक इनटू दिस। ठीक है, तो वेरी सून आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं पहले आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं। कल आपका एक लेक्चर होगा, राइट, बाय अभिलाष शर्मा सर, राइट। और उसमें स्पेशली इट वुड बी फॉर द 10th ग्रेड स्टूडेंट्स, 9th 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। बट आप लोग भी आ सकते हैं, राइट, जिन्होंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए एडमिशन ले लिया है, राइट, आई मीन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड मेडिकल। वो भी आप इस सेशन को जरूर अटेंड करें, द इंफॉर्मेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लेक्चर जो ये कल होने वाला लेक्चर 4 to 5 PM, 19th जनवरी,
सेम टाइम 4 to 5 PM। फिर उसके बाद में 20 जनवरी को अगेन आई हैव द सेशन विद यू गाइस, बट उसका टाइमिंग ध्यान रखें आप 5:30 to 6:30। ऑलराइट, द टाइमिंग वुड बी 5:30 to 6:30। और बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, भाई देखो टीचर तो यहाँ पे बता देंगे, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा टच में रहें, तो आप एक तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको सारे लेक्चर्स ये, तो आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहां पे यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन एज वेल। ऑलराइट, और वहां पे अपार्ट फ्रॉम दिस आपको फेसबुक इंस्टाग्राम अगर आप थोड़ा सा भी टच में है वहां से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको यूट्यूब में रिकमेंड करूंगा जरूर कि आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, वहां से आपके पास सारे नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे। चलो फिर आज के लिए चलते हैं, इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपरली फिर मैं आपका जो इनपुट था वो भी मैं मैनेजमेंट को बताता हूँ कि इनको भाई प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट करवा देते हैं। चलो फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, एंजॉय।